Let's start the class today, and I hope you all are able to see the screen I have been sharing with you all. Hello, please do reply. Are you able to see the screen? All right. So we'll continue with the same topic as let us see what we have already done in our last or previous classes. So we were up to discuss the what do you call it, the determinants of money supply. This was the topic we have started in our last to last class, and we have figured out that there are two determinants basically. One is the what do you call it, money multiplier, and another one was the monetary base. Now within the money multiplier there are different determinants of money supply, like cash reserve ratio, required reserve ratio, excess reserve ratio, and monetary base as its two components. This all we have already discussed. What are the central bank's determinants of money supply? And in the last class what we have done was we have been completed with the what do you call it, banking systems determinants of money supply. एंड जो हमने देखा और जितना हमने समझा लास्ट क्लास में, उसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम का डिटर्मिनेंट है वो एक ही था, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं उसे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को शो कर देता हूँ कि हमने जो देखा है वो आप देखिए। लास्ट क्लास में हमने देखा कि सिर्फ एक्सेस रिजर्व रेशो इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, और यू कैन से द बैंक्स in general, all right, but other determinants are not within the purview of the banking system. After that we have seen how the excess reserve ratio determines the value of money multiplier and consequently determines the value of money supply in the economy. This is what we have seen, and further we have seen that what are the different factors that determines the value of excess reserve ratio. What factors are being considered by the central bank for determining the excess reserve ratio. Now today's agenda is that we are supposed to discuss is what else remains. What else remains is known as we will address the topic with the title that public's determinants of the money supply. Public's determinants of the money supply, कि मनी सप्लाई के पब्लिक के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं. लेट अस सी once again that we all know that the money supply equals CR plus 1 upon में CR plus RRD plus ERD in multiplication with H. This is what we have seen in our last class. Now if we'll go by this we have discussed that this portion and this gentleman and this gentleman, they both are under the control of central bank. They both are under the control of central bank, and this is under the control of commercial banks, or you can simply say the banks, commercial banks or the banks you can say. कि ये दोनों रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और हाई पावर्ड मनी जो है या मॉनेटरी बेस जो है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, एंड एक्सेस रिजर्व रेशो इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक और सिंपली द बैंक्स. अब क्या बचा? अब बच गया सिर्फ कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो कह रहा हूँ, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, ये रह गया ना, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो. अब जो ये करेंसी टू डिपॉजिट रेशो है, ये किसके अंडर में? दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक. दिस इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द पब्लिक. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाई. द आंसर इज सिंपल.
देखो कि पब्लिक ये डिसाइड करती है कि भाई जो जितने भी फंड्स उसके पास रिसीव हो रहे हैं, उससे मेरा मतलब है पब्लिक से, पब्लिक को जितने भी फंड्स रिसीव हो रहे हैं, पब्लिक इसी चीज को डिटरमाइन करती है कि जितने भी फंड्स पब्लिक को रिसीव हो रहे हैं उन फंड्स में से कितने फंड्स वो अपने बैंक में एज अ डिपॉजिट रखेंगे और कितने फंड्स को वो एज अ एक तरीके से अपने पास करेंसी की फॉर्म में, कैश जिसको हम बोलते हैं, कैश फॉर्म में रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो इसलिए जो पब्लिक होगी वो डिसाइड करती है कि कैश रिजर्व रेशो क्या होगी, कैश टू करेंसी, सॉरी करेंसी टू डिपॉजिट रेशो क्या होगी, कैश रिजर्व रेशो नहीं, वो मैं गलती से बोल गया, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो क्या रहेगी। यानी कि ये पब्लिक डिसाइड करती है कि कितने फंड्स पब्लिक अपने पास एज अ कैश की फॉर्म में रखना चाहती है और कितने फंड्स एज अ डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखना चाहती है। लेट अस सी दैट विद द इक्वेशन। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप इफ यू कैन रिकॉल द थिंग्स, कि वी हैव डिस्कस्ड दैट कि मनी सप्लाई दो तरह से है भाई। दो तरह से क्या है कि एक तो होता है एच हो गया C+R, ये तो सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये तो सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पब्लिक मनी सप्लाई किसको देख रही है, C+D। ये किसके पास है, मनी सप्लाई विद द पब्लिक। हमने किया था ना शुरू में डिस्कस कि दिस इज मनी सप्लाई विद द पब्लिक, कि लोगों के पास कितनी मनी सप्लाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये मनी सप्लाई है इसमें कितना डिपॉजिट्स मेंटेन करना है और किस प्रोपोर्शन में करेंसी मेंटेन करनी है, दिस ऑल इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द पब्लिक इटसेल्फ। ये सब कौन डिटरमाइन करता है, पब्लिक डिटरमाइन करती है। ये बैंक डिटरमाइन नहीं करता है कि डिपॉजिट्स कितने रखने हैं, डिपॉजिट की फॉर्म में कितना रखना है पैसा और करेंसी की फॉर्म में कितना रखना है, ये बैंक डिसाइड नहीं करता है, ये आप और हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो भी फंड्स आएंगे उनको हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी करेंसी जो हमारे हाथ में है, जिसको हम C बोलते हैं या मान लीजिए करेंसी बोलते हैं, या आप आम भाषा में इसको हम लोग कैश बोलते हैं। तो आप इसको मानकर चलिए कि जो करेंसी है या कैश है, कितना हमारे पास कैश होगा और कितना डिपॉजिट्स होगा, कितना हमारे पास डिपॉजिट्स होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये आप और हम डिसाइड करते हैं। ये कोई बैंक डिसाइड नहीं करता है। अब देखो जो भी इंडिविजुअल को, कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को इनकम मिली। अब उस इनकम में से कितना पोर्शन वो अपने पास करेंसी की फॉर्म में कैश रखेगा और कितना पोर्शन वो डिपॉजिट्स में रखेगा, हु विल डिसाइड दिस? दिस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ थिंक ऑफ द सेम सिचुएशन दैट in the entire economy every individual is being deciding this for himself. अरे भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो, और हम कैसे डिसाइड करते हैं इसका दूसरा एग्जांपल देखिए। जो कैश आपके पास है उसको आप एक तरीके से डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डिपॉजिट्स आपके पास है एक तरीके से उसे आप कैश में या करेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है, ये आपके ऊपर होता है कि जो इंडिविजुअल है वो, भाई हमारे पास मान लीजिए घर में कैश पड़ा है या इनकम हमें कैश में मिली, तो ये हम ही डिसाइड करते हैं ना कितने पैसे हमें बैंक में जमा करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने पैसे हमें बैंक में डिपॉजिट करने हैं या बैंक से कितने पैसे निकलवाने, ये कौन डिसाइड करता है? यस प्लीज टेल मी द आंसर। यस एवरीवन, ये कौन, पब्लिक या वो इंडिविजुअल जिसका, या इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर? तो इसलिए क्या है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जो होगी दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द पब्लिक। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है। now first of all we will see how the currency deposit ratio affects the money supply and by what route. Now you can see simply that the currency to deposit ratio will influence the money multiplier, will influence the value of money multiplier, and the value of money multiplier will influence the value of money supply. This you can figure it out from this equation, that M equals CR plus 1
अपॉन में CR प्लस RRD प्लस ERD इंटू में H। अब देखो जो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, उस H को तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करने वाली है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो इन्फ्लुएंस करेगी इसे। और ये क्या चीज है, ये है मनी मल्टीप्लायर, ये है मनी मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो इन्फ्लुएंस करेगी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को, और फिर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फ्लुएंस करेगी मनी सप्लाई की वैल्यू को। अब किस तरह से करेगी, कैसे करेगी, कितना होने पर क्या करेगी, उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सभी अपनी पेन और कॉपीज, प्लीज ब्रिंग आउट योर पेन एंड कॉपीज। आई होप एवरीबडी इज कीपिंग pen as copies with his pen or copy with himself or notebook, whatever you say, and please tell me the answer. Suppose if currency to deposit ratio is 0.25 and required reserve ratio is 0.20 and excess reserve ratio is if I'm not wrong is 0.05, what is the value of multiplier? And the value of H is, let us assume 1 lakh rupees, this is 1 lakh rupees. Now everyone please tell me the value of money multiplier, small m. What is the value of small m, money multiplier? 0.25 plus 1 divided by 0.25 plus 0.20 plus 0.05. Now please tell me the answer. Yes, hurry up everyone. What is the answer? 2.5. So the money multiplier would be 2.5. If money multiplier is 2 point, when currency to deposit ratio is 0.25, in that case the value of money multiplier is 2.5. all right, now what is the money supply in this case? Money, capital M, money supply is money multiplier into में H, this is 2.5 in multiplication with 1 lakh, this will comes out to 2,50,000. Yes, 2,50,000 is the money supply when cash reserve ratio is something like 0.25. Now let us increase the what do you call it, currency to deposit ratio. Let's increase it from what do you call it, जो CR हमारा है इसको हम क्या कहते हैं 0.25 की जगह इसको हम इंक्रीज कर देते हैं 0.50 पे. Suppose if CR is 0.50, now in this situation what would be the value of money multiplier? Now we can calculate it. Hurry up everyone, please do calculate. So this would be 2. Now you can see the money multiplier is 2, and therefore what would be the money supply in this case? Yes, 2 into 1 lakh, that will comes out to be 2 lakhs. Now you can imagine and you can simply deduce the conclusion that when the currency to deposit ratio increases, in that case the value of money multiplier decreases, isn't it? The increase in the currency to deposit ratio is inversely affecting the what do you call it, money multiplier, and so is the case with the money supply, कि money supply भी decrease होगी और money multiplier की value भी क्या होगी, कम हो गई. तो आप इसको देखिए, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब करेंसी टू डिपॉजिट रेशो इंक्रीज हुई तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हुआ. अब क्योंकि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज हुई, गिवन द वैल्यू ऑफ हाई पावर्ड मनी, मनी सप्लाई भी डिक्रीज होगी. ठीक है, इसी तरह जब करेंसी टू डिपॉजिट रेशो डिक्रीज होगी, इसका रिवर्स भी हम देख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगी, और वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगी तो मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी. इज दैट ओके? हेलो, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और इसी तरीके से ये होगा. तो ये हमने देखा हाउ
the change in the value of what do you call it, how a change in the value of what do you call it, the currency deposit ratio affects the value of multiplier and consequently affects the value of money supply. Is that okay? Hello, is that okay? Now the question, now the question is, what affects the value of currency deposit, currency to deposit, well currency to deposit ratio, कि अब करेंसी टू डिपॉजिट रेशो की वैल्यू को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. नाउ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन. ऑलराइट, अब हम क्या देखेंगे कि भाई पब्लिक किन बातों को, हमने ये बोला ना कि पब्लिक विल डिसाइड द करेंसी टू डिपॉजिट रेशो. इज दैट ओके? हेलो, ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे कि पब्लिक किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है टू डिटरमाइन द करेंसी टू डिपॉजिट रेशो. कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को डिटरमाइन करने के लिए पब्लिक किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है. तो टॉपिक क्या बन जाएगा? व्हाट फैक्टर्स माइट लीड टू a change in the public's desired currency to deposit ratio. कि पब्लिक जितनी करेंसी टू डिपॉजिट रेशो मेंटेन करना चाहती है उसको कौन से फैक्टर्स जो है चेंज करते हैं, या सिंपली आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट रेशो. कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जो है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. इज दैट ओके? करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जो है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. दिस इज द सिंपल द एजेंडा इज ऑल अबाउट. क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? हेलो, जितना अब तक मैंने बताया है, समझाया है, उससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है. यस, जितना भी, यस स्टूडेंट्स, जितना भी अब तक हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. यस, प्लीज रिप्लाई. इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग इन रिगार्ड टू दिस? यस, चलिए ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अब उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आता है, ध्यान से देखिए, आसान है, कोई ज़्यादा मारा मारी वाली बात नहीं है, क्या मुश्किल की बात है, आसान है. सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट्स ऑन चेकेबल डिपॉजिट्स. कि जो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं उन पे इंटरेस्ट रेट कितना है. चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो गया? वो डिपॉजिट्स, इस तरह के अकाउंट में डिपॉजिट्स जिसके अगेंस्ट हमें चेक बुक इशू हो रखी है और उसको हम जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू. इज दैट ओके? हेलो, ठीक है. अब मान लीजिए कोई भी इंसान बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट करता है, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक तो ये कि घर में जो पैसा रखा होगा उसकी फिजिकली उसकी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा उसमें, यानी कि वो वैल्यू उतनी की उतनी ही बनी रहेगी उसकी. इज दैट ओके? बट अगर वो बैंक में डिपॉजिट करता है पैसे को, या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से उसे कुछ रिटर्न मिले, तो वो उसकी जो कैपिटल होगी उसमें इंक्रीमेंट करती है. इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है. तो इसी तरीके से मान लीजिए कि फिर वही बात आ गई कि होल्डिंग द मनी
holding the money in the form of cash has an opportunity cost. Holding money in cash, or you can say the currency form has opportunity cost. और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट फॉरगॉन। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट फॉरगॉन। इंटरेस्ट फॉरगॉन का मतलब क्या है कि भाई एक तरीके से जो पैसा हमारे पास कैश की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में रखा है, अगर वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया होता तो उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ रिटर्न हमें मिल जाती। उस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देता ना बैंक हमें, यस और नो? ईयर के एंड में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट उस पर मिलता, जो भी अमाउंट होता उसके अकॉर्डिंगली, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली। बट अब अगर हमने उसे अपने पास कैश की या करेंसी की फॉर्म में रखा हुआ है तो वो इंटरेस्ट फॉरगॉन है। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये कितना है? मान लीजिए अगर ये इंटरेस्ट रेट कम है, एक तरीके से ये जो इंटरेस्ट रेट यहां लिखा हमने चेकेबल डिपॉजिट पे, ये इंटरेस्ट रेट आई अगर कम है तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, क्योंकि इंटरेस्ट फॉरगॉन इज रिप्रेजेंटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश विद हिमसेल्फ और कैश विद द इंडिविजुअल, और यू कैन से एनी हाउस होल्ड और एनी सेक्टर, वट एवर इट मे बी। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो पीपल विल प्रेफर टू होल्ड लेसर डिपॉजिट्स इन द बैंक। अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट नेग्लिजिबल मिलता है या नहीं मिलता है तो लोग क्या करेंगे? लोग कम पैसा बैंक में रखना चाहेंगे और अपने पास कैश की फॉर्म में ज्यादा प्रेफर करेंगे। प्रेफर से मेरा मतलब है दे विल बी इनडिफरेंट in keeping money in the form of currency with themselves and keeping money with the banks itself, कि बैंकों में जमा करके रखना पैसा और अपने पास क्या कहते हैं कि कैश की फॉर्म में रखना पैसा, इन दोनों में ही क्या करेंगे? एक तरीके से व्हाट डू यू कॉल इट, वो इनडिफरेंट से हो जाएंगे कि भाई रिटर्न तो इतनी ज्यादा नहीं है, घर में रखे रहने दो, 150 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके लिए कौन बैंक जाएगा, खाता खुलवाएगा, फिर चेकबुक से विड्रॉ कराओ, ये करो वो करो। तो कहने का मतलब क्या, वो झंझट इंसान ज्यादा पालता नहीं है, वो इनडिफरेंट हो जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होती है? कम होती है। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट घटेगा, घटने से मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे ही कम होगी तो लोग क्या करेंगे? दे विल द करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, दे विल इंक्रीज द करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। क्यों? क्योंकि दे विल प्रेफर टू कीप करेंसी विद देमसेल्व्स एंड दे विल कीप लेसर डिपॉजिट्स। इसको मैं चेन बना के आर्गुमेंट को लिख ही देता हूं यहां पर, एक तरीके से इसको मैं लिख देता हूं जस्ट फॉर द सेक की भाई ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल्स प्रेफरेंस ऑफ होल्डिंग डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, आई विल राइट, बैंक डिपॉजिट्स विल डिक्रीज। अब वो बैंक डिपॉजिट्स की डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब दे विल प्रेफर टू कीप करेंसी, करेंसी होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी उनकी। करेंसी होल्डिंग इंक्रीज होगी तो उससे करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो क्या है? C अपॉन में D। आप इसको घटा रहे हो, D को, डिनोमिनेटर को घटा रहे हो और न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हो, तो एक तरीके से ये बढ़ेगा ना फिर। हेलो, यस और नो? तो ये हो गया। इसका अपोजिट देख लीजिए, ये बढ़ेगा, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनकी प्रेफरेंस ऑफ होल्डिंग डिपॉजिट्स इंक्रीज हो जाएगी। प्रेफरेंस टू होल्डिंग डिपॉजिट्स इंक्रीज होगी तो करेंसी को होल्ड करने की जो प्रेफरेंस होगी वो कम हो जाएगी। करेंसी को होल्ड करने की प्रेफरेंस कम होगी तो इसलिए उनकी क्या कहते हैं कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो कम हो जाएगी। यस और नो? तो एक तरीके से ये इनवर्सली अफेक्ट करेगा करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को, इंटरेस्ट ऑन चेकेबल डिपॉजिट्स। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस प्लीज। हेलो, ठीक है। अब आता है आगे,
अब आती है आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट फैक्टर जो है विच विल डिटरमाइन द करेंसी टू डिपॉजिट रेशो इज समथिंग लाइक फीस ऑन चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट्स को फीस कैसी है, ठीक है। चेकेबल डिपॉजिट्स की फीस का मतलब क्या है, चेकेबल डिपॉजिट्स में फीस का मतलब क्या है कि भाई जो आप डिपॉजिट्स बैंक में रखते हैं तो आप बैंक में ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ भी करते हैं, यस और नो? प्लीज़ पार्टिसिपेट। हेलो, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स एक मिनट बात सुनिए, जब आप और हम या कोई भी इंडिविजुअल जब बैंकों में एक तरीके से अपने डिपॉजिट्स हेल्ड करता है, हमने हमारे अकाउंटों में जो भी बैलेंस जाता है हमारी इनकम के थ्रू या वट एवर द सोर्सेज आर, तो उनसे जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, तो उस डिपॉजिट्स के ऊपर हम कई तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज भी देता है। जैसे बैंक हमें चेक बुक भी इशू करता है, बैंक हमें एटीएम से विड्रॉ करने के लिए भी अलाउ करता है, फैसिलिटी देता है, बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी भी दे देता है अगर रिक्वायर्ड हमें होती है। तो बैंक हमारे लिए क्या कहते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है या XYZ किसी और फॉर्म में, तो उसके लिए भी चार्ज करता है। बैंक हमें एक तरीके से जो क्या कहते हैं कि हमारा एनुअल मेंटेनेंस है अकाउंट का, तो उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कुछ लेता है। तो एक तरीके से ना किसी फॉर्म में फंड्स को डिपॉजिट करने की, यानी कि फंड्स को या अपने चेकेबल डिपॉजिट्स को मेंटेन करने की हमारे पास कोई ना कोई हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कई बार बैंक हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहता है, अगर वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन्ड नहीं है तो उसके ऊपर वो फिर पेनल्टी या कुछ फाइन वाइन लगाता है या कुछ क्या कहते हैं कि चार्जेस लगाता है। तो कई तरह के चार्जेस, कई तरह की फीस होती है जो बैंक हमसे चार्ज करता है, क्योंकि वो हमारे अकाउंट को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? अब जो इंडिविजुअल है, जैसे आप हैं, मैं हूं, सब है, कोई भी हाउस होल्ड है या कोई भी हाउस होल्ड या पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी है, तो वो क्या करता है, अगर वो देखता है कि फीस ज़्यादा है, सपोज करो ये फीस जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंटली बैंक की सर्विसेज यूज़ नहीं करेगा। हेलो, अगर वो फीस ज़्यादा है, अगर फीस या चार्जेस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब वो एक तरीके से बैंक को ज़्यादा विजिट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे तो रोज़ कैश की ज़रूरत होती है, घर के रोज़मर्रा के सामान के लिए कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग ज़्यादातर करते हैं, तो कैश की हमें ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए फ़ीस ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, ये एक तरीके से कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बैंक अकाउंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बैंक अकाउंट बढ़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बैंक अकाउंट बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होगा कि जो लोगों की अट्रैक्टिवनेस है, यानी कि लोगों की जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिवनेस कह लीजिए, अट्रैक्टिवनेस ऑफ होल्डिंग करेंसी बढ़ जाएगी, अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी उनकी करेंसी को होल्ड करने की। यस और नो? क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बैलेंस अकाउंट मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो बैंक में कम रखना चाहेंगे, कहेंगे भाई अपने पास पैसा ज़्यादा रख लो, रोज रोज बैंक जाएंगे, एटीएम से बार बार निकालेंगे, तो हर बार ट्रांजैक्शन के हमारे पास चार्ज लग रहे हैं। यस और नो? अरे भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई एटीएम से पैसा निकालोगे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे या कुछ भी इस तरह का करते हो, तो उस केस में क्या होगा कि एक तरीके से आपके ऊपर चार्जेस या पेनल्टीज लग रही हैं। या सुनो, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मान लीजिए हम बार बार बैंक जाते हैं और बार बार बैंक जाए, बार बार रोज रोज एटीएम से हम पैसा विड्रॉ करेंगे, मान लो हर बार जो हमें 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, 5000 चाहिए, 2000 चाहिए, डेली बेसिस पर हम एटीएम पे जाएं, एक तो जाने की कॉस्ट, आने जाने की कॉस्ट, दूसरा क्या है उसमें एटीएम पे जब हम स्वाइप करेंगे अपने कार्ड को विड्रॉ करने के लिए, कैश विड्रॉल के लिए,
तो हर बार के बाद कुछ एक 2 या 4-5 बार हमें फ्री वाली अवेलेबल होती हैं, उसके बाद बैंक चार्ज करता है। डू यू नो दिस और नॉट? हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बार बार स्वाइप करने की कॉस्ट हमारे पास बढ़ेगी और वो फीस ज्यादा है, तो हमारे ऊपर एक तरीके से कॉस्ट का बर्डन पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि लोगों की अट्रैक्टिवनेस ऑफ होल्डिंग करेंसी बढ़ती है, और अट्रैक्टिवनेस ऑफ होल्डिंग करेंसी बढ़ेगी तो एक तरीके से करेंसी टू डिपॉजिट रेशो इंक्रीज होगा। तो आप देखिए ये इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। यानी कि जो फीस पे करते हैं हम चेकेबल डिपॉजिट्स पे, वो भी एक तरीके से क्या कहते हैं कि डिटरमाइन करती है किस चीज़ को, कि भाई कितना करेंसी टू डिपॉजिट रेशो होगा, कि इंडिविजुअल्स करेंसी की फॉर्म में पैसा रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या डिपॉजिट्स की फॉर्म में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिससे कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके विद एवरीवन? हेलो, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम। एक तरीके से कह लीजिए इनकम लेवल, कि इंडिविजुअल्स का इनकम लेवल कितना है, सोसाइटी में हाउस होल्ड्स का या जो भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो किस इनकम लेवल से बिलोंग करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादातर पेमेंट कैश की फॉर्म में रखते हैं या ज़्यादातर पेमेंट एक तरीके से क्या कहते हैं कि करेंसी की फॉर्म में रखते हैं। तो अगर इनकम लेवल हायर है यानी कि ज़्यादा है इनकम लेवल, तो वो लोग क्या करते हैं, दे विल प्रेफर टू कीप या टू होल्ड बैंक डिपॉजिट्स, टू होल्ड मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, कि अपनी इनकम के मेजर पार्ट को वो बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि अपनी इनकम के ज़्यादातर पार्ट को वो बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं, कि इनकम का ज़्यादा टू प्रेफर टू होल्ड बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि अपनी इनकम का ज़्यादातर पार्ट बैंक डिपॉजिट्स में रखेंगे, क्योंकि वही सेविंग्स करते हैं। भाई जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वही सेविंग्स कर पाते हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हो आप कि सेविंग्स ज़्यादा करते हैं तो जो सेविंग करेगा वही बैंक में रखेगा। अदरवाइज जिसने डेली, जिसकी इनकम ही इतनी है कि वो कुछ बचा ही नहीं पा रहा है, उसकी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है कि ताज़ा कमाया ताज़ा खाया, और उसमें जितना भी उसके पास इनकम लेवल आ रहा है उसमें से वो सेविंग्स कम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उसकी ज़्यादातर इनकम जो है उसके खर्चों में ही निकल जाती है, जो उसके हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं उन्हीं के रिगार्ड में वो खर्च कर देता है। तो उसकी क्या कहते हैं कि उसके पास तो सेविंग्स होगी नहीं, वो तो बैंक डिपॉजिट्स कम रखेगा। अब जिनकी इनकम हायर है वो बैंक डिपॉजिट्स रखेंगे। बैंक डिपॉजिट्स को प्रेफरेंस अगर उनकी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जो होगी वो कम हो जाएगी। यस और नो? और अगर यही इनकम लोअर है, लोअर लेवल ऑफ इनकम है, तो ये घट जाएगा, क्योंकि जो लोअर इनकम लेवल होगा उसके पास तो इनकम इतनी है ही नहीं कि वो सेविंग्स करे, बैंकों में डिपॉजिट करे पैसा, और क्या कहते हैं कि बार बार बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करे, या सर, या उतने बैंक के चार्जेस पे करे जो भी होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनकी प्रेफरेंस टू होल्ड होल्ड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स वो कम हो जाती है, और बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में वो कम होगी, तो जिसके कारण क्या होता है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ जाती है। तो इनकम लेवल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड इनकम या इकोनॉमी जो है उसमें करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ेगी या घटेगी। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? अब तक जो भी कुछ हमने डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो आप लोग? हेलो, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर। ऑफ बैंक फेलियर। बैंक फेलियर से क्या मतलब है? बैंक फेलियर का मतलब है एक तरीके से जब जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये बैंक जो होगा डिफॉल्ट करने वाला है, ये बैंक डूबने वाला है। भाई ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है ना कि लोगों को लग सकता है ना कि बैंक डूबने वाला है। हेलो हेलो, ठीक है ना? तो अगर बैंक डूबने वाला है तो उस केस में अब सवाल ये आता है कि लोगों की अगर ये परसेप्शन बन जाता है कि बैंक डूबने वाला है, यानी कि बैंक के डूबने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे? बैंकों में अपना पैसा कम रखेंगे, कैश अपने पास ज़्यादा रखेंगे। यस और नो? अब आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, पता नहीं, मैंने तो ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ और बैंकों से पैसा निकालने के लिए जब एक लिमिटेशन फिक्स कर दी गई कि आप इससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक हफ्ते में, या इससे ज़्यादा कैश आपको अवेलेबिलिटी नहीं मेंटेन होगी, कर पाओगे, ठीक है ना? तो उस केस में क्या हुआ फिर? उस केस में क्या हुआ फिर? उस केस में एक तरीके से जो बैंक हैं, उस केस में एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने अपना फर्दर आगे पैसा बैंक में डिपॉजिट करना कम कर दिया, क्योंकि भैया हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वहां से विड्रॉ कम मिलेगा, हम तो नहीं अपना काम चला पा रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से अगर बैंकिंग सिस्टम में उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है या बैंक के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर अगर इंक्रीज हो जाती है, पीबीएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर, ठीक है? ये मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। अगर ये इंक्रीज होती है तो इसका मतलब प्रेफरेंस टू होल्ड करेंसी, प्रेफरेंस टू होल्ड मनी in the form of currency जो होगी वो बढ़ जाएगी। यस और नो? कि अगर लोगों को लगेगा कि बैंक फेल हो जाएंगे और बैंक तो हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे, कल को फेल हो गए तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो वो प्रेफर करेंगे अपने के पास कैश रखना, करेंसी की फॉर्म में रखना। करेंसी की फॉर्म में रखना प्रेफर करेंगे तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ जाएगा। ऐसी अगर ये बैंक फेलियर की कम प्रोबेबिलिटी है तो ये कम होगा। इस तरीके से इसको आप कम लगा लीजिए। तो एक तरीके से ये भी पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है? हेलो, ठीक है? तो इसलिए ये सिचुएशन होती है, क्योंकि बैंक के फेलियर की प्रोबेबिलिटी एक सिचुएशन अराइज करती है जिसको हम बोलते हैं बैंक पैनिक, कि सब लोग बैंक के सामने इकट्ठे हो गए क्या करने के लिए कि भाई हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, मतलब अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए एकदम इकट्ठे हो गए। जब उनको ऐसा लगा, कैसा लगा कि भाई बैंक फेलियर होने वाला है और बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा, तो सब सोच रहे हैं जल्द से जल्द जाके, कल इससे पहले कि ये डूबे उससे पहले हम जल्द से जल्द जाकर क्या कर लें, अपने पैसे वहां से विड्रॉ कर लें। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने ये सोचा बैंक पैनिक। तो ये वो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बैंक पैनिक बोलते हैं। तो ये इस तरह से करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को इन्फ्लुएंस करता है। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस, इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एक लड़की की आवाज आ रही थी, क्या नाम बेटे, बोलो। यस, कुछ पूछना चाह रहे हो? Who was that girl? She was just trying to ask. Okay, clear है? ठीक है, ठीक है, अगर क्लियर है तो ठीक है। फिर मुझे लगा you want to ask something। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को डिटरमाइन करता है, लेट अस सी दैट कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इलीगल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, पॉइंट हमारा है इलीगल एक्टिविटी, कि भाई
इलीगल एक्टिविटी का लेवल क्या है इकोनॉमी में। अब देखो ये आप सब लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इलीगल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। हेलो हेलो भाई, इलीगल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। यही मतलब हो गया ना कि कोई इलीगल काम करेगा उसका रिकॉर्ड नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि वो तो सबूत हो गया उसका, ठीक है ना। तो इलीगल एक्टिविटी का मतलब हो गया अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं चाहते हैं तो व्हाट डज दैट मीन्स? You don't want to, no, this is what does this implies? This implies that the individuals who will indulge in illegal activities will prefer to transact in the form of cash instead of banking institution, isn't it? कि वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जगह कैश से ट्रांजैक्ट करना पसंद करेगा। इज दैट ओके? तो अगर इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा हैं, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज इकोनॉमी में बढ़ रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, तो इकोनॉमी में इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा होने से क्या होगा? एक तरीके से मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ करेंसी प्रेफर करेंगे लोग। यस और नो? क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज है, कैश ट्रांजैक्शन ही ऐसी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ा ही, फिर कह दो मेरे पास तो थे ही नहीं, देखो तो उसके पास है। यस और नो? हेलो हेलो। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है, जैसे गैम्बलिंग हो गई, किसी ने टैक्स की चोरी करनी है, किसी ने ड्रग डीलिंग करनी है, इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, कोई और भी इसके अलावा इलीगल एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन, उसमें ज़्यादातर वो करेंसी की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में की जाती है। अब वो कैश की फॉर्म में की जाती है, इसलिए करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ जाता है। अब देखो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ कि हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे। यस और नो? हम क्या कर देंगे? ब्लैक मनी खत्म कर देंगे। तो ब्लैक मनी का मतलब क्या होगा? इलीगल ट्रांजैक्शन से की गई, कमाई गई इनकम, जिसको आप अंडरग्राउंड इकोनॉमी बोलते हो। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, या उसे आप लोग ब्लैक इकोनॉमी भी बोलते हो। अंडरग्राउंड इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी की जिसकी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं कैश की फॉर्म में होती हैं और अनरिकॉर्डेड कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वो सारी ट्रांजैक्शंस क्या है? इलीगल एक्टिविटीज कहती है। अगर वो बढ़ रही हैं तो कैश की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी, और कैश की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ेगी, और इसका अपोजिट होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर वो कम होंगी तो ऑब्वियस बात है कैश ट्रांजैक्शंस कम होगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होंगी, और करेंसी टू डिपॉजिट रेशो कम होगी। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? Is there any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? जितना भी हमने ये डिस्कस किया है अभी तक कि करेंसी टू डिपॉजिट क्या होगा, और क्या कहते हैं कि किस तरह से करेंसी टू डिपॉजिट रेशो डिटरमाइन होती है, और करेंसी टू डिपॉजिट रेशो मनी सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस करती है या मनी मल्टीप्लायर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और फिर हमने देखा कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। भाई मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो डिटरमाइन करती है। तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें मनी सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करेंगी इकोनॉमी में। अगर हम इनको सभी को देखना चाहें तो इनको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। इधर देखिए ज़रा, मैं इनको एक क्या कहते हैं कि उसमें फॉर्म में समराइज करना चाह रहा हूँ। इनको हम ऐसे, जितने भी फैक्टर्स हमने अब तक पढ़े हैं उनको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं क्या? सबसे पहला जो फैक्टर था
कि भाई मनी सप्लाई को कौन डिटरमाइन करता है। तो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करता है एक तो हाई पावर्ड मनी, एंड दूसरा क्या था, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ठीक है, ये दोनों चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, ये दोनों चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं किसको, क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई को। और इन दोनों चीजों को कौन इन्फ्लुएंस करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है एक तरीके से सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है कि सेंट्रल बैंक ने इन्हें इन्फ्लुएंस किया, इन्होंने फिर फर्दर मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। एक पॉइंट तो ये हो गया जिसको हम देख सकते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर रहे हैं एक बार। और दूसरा क्या हो गया कि बैंक या कमर्शियल बैंक, बैंक या कमर्शियल बैंक किस किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा था, सिर्फ एक चीज को, किसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, बैंक या कमर्शियल बैंक, करेंसी टू एक्सेस रिजर्व रेशो को, है ना, एक्सेस रिजर्व रेशो को, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है बैंक। तो किसके थ्रू कर रहा है इसको इन्फ्लुएंस, एक फैक्टर क्या था हमारा जो हमने देखा था, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। दूसरा क्या था, रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल्स, रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल्स। रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल्स, इसको मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड में करके लिख देता हूँ, आगे लिख दूंगा अभी राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये स्पेस का चक्कर पड़ रहा है। तीसरा क्या था, इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेट्स ऑन बोरोड रिजर्व्स। ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है किसको, एक्सेस रिजर्व रेशो को, एक्सेस रिजर्व रेशो फर्दर इन्फ्लुएंस करती है किसको, मनी मल्टीप्लायर को, और मनी मल्टीप्लायर इन्फ्लुएंस करता है किसको, मनी सप्लाई को। ये मैं रूट बता रहा हूं आपको, ताकि कल को अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स जो होगा मनी सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, तो आप कैसे बताओगे, आपका रूट यहां से चलेगा कि मार्केट इंटरेस्ट रेट लोन इसे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये इसे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, और ये इसे फिर कैसे अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जाएगा इस पे, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं जाएगा। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से चैनल है कि किस चैनल के थ्रू कौन सा इफेक्ट ट्रांसमिट होगा बैंकिंग सिस्टम में मनी सप्लाई को। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है जो हमने अभी पढ़ा है पब्लिक का, है पब्लिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, पब्लिक। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक भी डिटरमाइन करेगी किसको, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को। तो पब्लिक करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को डिटरमाइन करेगी, किस किस चीज़ पर आधारित होगा। सबसे पहले होगा, हमने पढ़ा इंटरेस्ट रेट्स ऑन चेकेबल डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स। दूसरा था फीस ऑन चेकेबल डिपॉजिट्स, तीसरा था हमारा पॉइंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकम। द नेक्स्ट पॉइंट वाज इनकम, and another factor was the probability of bank failure, am I right? The probability of bank failure,
and the next one was, what was the next one? Illegal activity. illegal activity. ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे किसको? करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को। और करेंसी टू डिपॉजिट रेशो इन्फ्लुएंस करेगी किसको? मनी मल्टीप्लायर को। और मनी मल्टीप्लायर फर्दर इन्फ्लुएंस करेगी किसको? मनी सप्लाई को। मनी मल्टीप्लायर इन्फ्लुएंस करेगा किसको? मनी सप्लाई को। हेलो हेलो बेटे समझ में आ रहा है ये? तो अब देखो, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मनी सप्लाई को ये कैसे कैसे कर रहा है, हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। ये समराइज़ मैंने कर दिया है। समराइज़ इसलिए क्या, क्योंकि इसमें 2-3 क्लासें लग गई हमारी पीछे इसको पूरे टॉपिक को डिस्कशन में। तो आपको एक तरीके से ब्रीफ समरी मिल जाएगी इस चीज़ की, कि आसान हो जाएगा रिवाइज़ करना चीज़ें। कि अब देखो यहाँ पर ये मनी सप्लाई को कर रहा है, इसमें ये सीधा मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा, और ये पहले इन्फ्लुएंस करेगा किसको? मनी मल्टीप्लायर को। और मनी मल्टीप्लायर फिर मनी सप्लाई को। ये जो हाई पावर्ड मनी जो सीधा इन्फ्लुएंस करेगी मनी सप्लाई को, पर जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, देखो सेंट्रल बैंक 2 रूट अपना सकता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप लोग। ये चीज़ ये भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि सेंट्रल बैंक के 2 रूट है। एक रूट है ये हाई पावर्ड मनी वाला। अगर हाई पावर्ड मनी के रूट से सेंट्रल बैंक एक तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, जैसा हमने ऊपर डिस्कशन भी किया था पीछे क्लास में, वो लेक्चर आप दोबारा से वीडियो चलाकर देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है, नहीं तो जो अभी रीसेंट लेक्चर्स हैं उनकी तो मैं अभी भेजूंगा इस वीकेंड पर। तो ये जो हाई पावर्ड मनी के थ्रू, तो वो डायरेक्टली मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर देगा। उसमें मनी मल्टीप्लायर का कोई रोल नहीं है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। बट अगर सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो के थ्रू जाना चाह रहा है, इस रूट से जाना चाह रहा है, आरआरडी के रूट से, तो ये डायरेक्ट मनी सप्लाई को नहीं करेगा, ये मनी मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करेगा। ये मनी मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करेंगे, और मनी मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करके फिर ये मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। जबकि अगर बैंक को और पब्लिक को आप देखो, तो बैंक और पब्लिक मनी मल्टीप्लायर के थ्रू ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब, अब आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई मनी मल्टीप्लायर को पब्लिक इन्फ्लुएंस कर सकती है क्या, बैंक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? या आप ये देखिए, अब मनी सप्लाई की इक्वेशन होगी, ये होगी M = CR+1 अपॉन में CR + RRD + ERD इंटू में H। अब कोई आपसे सवाल पूछे, अब ये हिस्सा क्या है? मनी मल्टीप्लायर है। ये हिस्सा क्या है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कहलाता है ये। अब मनी मल्टीप्लायर को कौन कौन डिटरमाइन करता है? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मनी मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस कर सकती है कौन? सेंट्रल बैंक कर सकता है इन्फ्लुएंस। मनी मल्टीप्लायर को बैंक्स भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंस। मनी मल्टीप्लायर को एक तरीके से पब्लिक भी कर सकती है इन्फ्लुएंस, बट करेंगे अलग अलग रूट के थ्रू। जो सेंट्रल बैंक होगा वो आरआरडी के थ्रू करेगा, जो ये भाई साहब है। जो बैंक है वो एक तरीके से ईआरडी के थ्रू करेगा, जो कि ये भाई साहब है। और पब्लिक जो है वो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो के थ्रू करेगी, जो ये भाई साहब है, ये रहे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये तीनों ही मनी मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि इन तीनों के लिए मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में ज़्यादातर जो चेंज होता है मनी सप्लाई में, या मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो मनी मल्टीप्लायर के थ्रू किया जाता है। इसको सिर्फ कौन कर सकता है? इस भाई साहब को सिर्फ छेड़ सकता है सेंट्रल बैंक। इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। सेंट्रल बैंक दोनों तरफ, दोनों ही पैरामीटर्स को, यानी कि देखो सेंट्रल बैंक बैंकों से और पब्लिक से ज़्यादा पावरफुल हो गया,
ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि ये मनी मल्टीप्लायर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं? तो ये ज़्यादा चेंज ला सकता है। मान लो इसने इस तरह का चेंज किया कि मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो इसने इसके थ्रू भी मनी सप्लाई बढ़ाई और इसके थ्रू भी बढ़ाई, तो जो इफेक्ट आएगा वो ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट्स आएंगे ना। हेलो, जो इफेक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा ना तुलना में। हेलो, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा जो मैंने बताया है। हेलो, क्या आप लोगों को समझ आया जो मैंने बताया है? ठीक है, आज जो कराया ये सब समझ आया आप लोगों को? हेलो, आज जो कराया समझ आया? चलिए जी, ठीक है। तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।